Hello students, today the topic which I am going to teach is reconciliation of financial account and cost account. That is reconciliation of cost account and financial account. First you will write what does the term reconciliation means. Right? Reconciliation means tallying the profit or losses. Reconciliation means tallying the profit or losses revealed by tallying the profit or losses revealed by both set of accounts. Revealed by both set of accounts. That is financial account and cost account. ना आवाज कट कट के आ रही है आपकी. That is financial account and cost account. I'm repeating again. Reconciliation means tallying. Reconciliation means tallying the profit or losses revealed by both set of accounts. That is cost account and financial account. That is cost account and financial account. Cost account and financial account. Then write reconciliation statement is a statement. Reconciliation statement is a statement which shows the reason for the difference between profit and losses as shown by the cost account. Profit or losses as shown by the cost account with that of profit or losses shown by financial account. Profit or losses shown by financial account. Okay. Reconciliation of cost and financial account. This chapter, instead of making you people solve the question, एक स्टेप बाय स्टेप में क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो मैं समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ. तो सबसे पहले हमें देखना है रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन मीन्स व्हाट? टैलिंग, मतलब बराबर करना. किसको बराबर करना? कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट या लॉस को. इसका मतलब हुआ कि आपका फाइनेंशियल अकाउंट जो है, दैट इज एज पर योर फाइनेंशियल अकाउंट, इफ प्रॉफिट इज the profit shown by financial account is, suppose if it is 10,000 and your cost record, that is cost account, it reveals that the profit is 12,000. बिजनेस किसका है? बिजनेस आपका है, लेकिन आपका जो अकाउंटेंट फाइनेंशियल बुक्स मेंटेन कर रहा है वो आकर के बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट 10,000 है, और जो अकाउंटेंट है जो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है वो आकर के बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट 12,000 है. जब बिजनेस आपका है तो एक 10,000 बोल रहा है प्रॉफिट, एक बोल रहा है 12,000. ये कैसे हो सकता है? प्रॉफिट शुड बी वन एंड द सेम, क्योंकि बिजनेस में एक्सपेंसेस कहां से जा रहा है? एक्सपेंसेस आपके पॉकेट से जा रहा है. इनकम कहां आ रहा है? इनकम आपके पॉकेट में आ रहा है. दैट इज जो प्रॉफिट होना चाहिए वो फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से और कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इट शुड बी वन एंड द सेम. लेकिन कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो बताता है कुछ और प्रॉफिट बता रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड जो है वो कुछ और प्रॉफिट बता रहा है. तो इसके कॉजेस को जो हम खोजते हैं, दैट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट्स. ये कॉजेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर नोइंग द कॉजेस बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट और लॉस ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड with that of profit and loss of cost of record, what we prepare reconciliation statement. Reconciliation statement causes को जानने के लिए हम बनाते हैं. अब इसमें there are few terms जो फाइनेंशियल अकाउंट में यूज करते हैं और उसी टर्म के लिए हम कॉस्ट अकाउंट में दूसरा टर्म यूज करते हैं, वो मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगी.
expenses financial record, that is financial account में expenses को we write expenses. What we write it as expense. And cost account में instead of writing expense, what we write overhead. Overheads. फाइनेंशियल अकाउंट में हम यूज करते हैं टर्म, फाइनेंशियल अकाउंट में टर्म यूज करते हैं एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस, लेकिन कॉस्ट अकाउंट में हम क्या यूज करते हैं? ओवरहेड. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, so in financial account we use the term administrative expense, but the same expense while writing it or recording it in cost account, we record it as administrative overhead. It is what? It is administrative overhead. Suppose if the name of expense is factory expense, so the same expense while recording it in the books of in cost record, we are going to write it as factory overhead. That is financial account में expense use करते हैं term, and कॉस्ट अकाउंट में वी यूज द टर्म ओवरहेड. अब एक्सपेंसेस क्या होता है? कभी एक्चुअल, आपका जो एक्चुअल है और जो रिकॉर्डेड है, दैट इज एक्चुअल एक्सपेंस एंड रिकॉर्डेड एक्सपेंस, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो. दैट इज देयर मे बी सम मिस्टेक व्हाइल रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. कुछ गलती हो जाता है. तो सबसे पहला रीजन होता है फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट में डिफरेंस होने का. द रीजन इज actual and the recorded amount varies. इसका मतलब क्या होता है मैं अभी समझाती हूँ आप लोगों को. जैसे मान लो आपके एक्सपेंस दिया हुआ है, if the actual expense because of administrative, that is if administrative expense actual is 10,000, एक्चुअल एक्सपेंस आपका कितना? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 10,000 है. और ये जो 10,000 है जो आपने दो लोगों को रखा है, एक तो एक अकाउंटेंट है वो फाइनेंशियल बुक्स में आपका रिकॉर्डिंग कर रहा है, और एक अकाउंटेंट है वो आपके कॉस्ट रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर रहा है. अब क्या है? एक्चुअल एक्सपेंस जो हुआ है आपके बिजनेस में 10,000 हुआ है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. आपका जो अकाउंटेंट है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है उसने बिल्कुल सही किया. उसने क्या किया? 10,000 रिकॉर्ड कर दिया. लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड मान लो मैं मेंटेन कर रही हूँ, मैं आप क्या काम कर रही हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं गलती से उसे 12,000 रिकॉर्ड कर ली, या फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया 7,000. दोनों केस हो सकता है. ये गलती जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो कॉस्ट रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहा है उससे मिस्टेक हो, या फिर ये सिचुएशन हो सकता है कि 10,000 रुपया आपका एक्चुअल एक्सपेंस है और फाइनेंशियल अकाउंट में जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो जो अकाउंटेंट है उसने हो सकता है 7,000 रिकॉर्ड कर लिया हो, या हो सकता है उसने 15,000 रिकॉर्ड कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है. या फिर इन प्लेस ऑफ 10,000 हो सकता है 1,000 रिकॉर्ड कर लिया हो. देयर कैन बी एनी सिचुएशन. गलती से कुछ भी रिकॉर्डिंग हो गया तो उसको कैसे हम शो करेंगे रिकंसिलिएशन में, ये मैं अब समझाऊंगी. आपका एक्चुअल एक्सपेंस कितना था? एक्चुअल एक्सपेंस 10,000 था, और जो रिकॉर्ड कर रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड में उसने कितना रिकॉर्ड कर लिया? उसने रिकॉर्ड कर लिया 2,000. तो ये 2,000 रुपए जो है जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया अकाउंटेंट ने इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, इसको बोलेंगे ओवर रिकवर्ड. इसको बोलेंगे ओवर रिकवर्ड. टर्म्स ध्यान से सुनिएगा. कॉस्ट रिकॉर्ड में हम डिफरेंट टर्म यूज करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में हम डिफरेंट टर्म यूज करते हैं. अब मान लो फाइनेंशियल बुक्स जो मेंटेन कर रहा है उसने वो 12,000 रिकॉर्ड कर लिया होता इन प्लेस ऑफ 10,000, तो इसे हम लिखते हैं, ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया इसको लिखते हैं एक्सेस एक्सपेंस चार्ज. यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं ओवर रिकवर्ड इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं एक्सेस एक्सपेंस. अब ये सिचुएशन अभी तो मैंने लिखा एक्सेस का, और मान लो आपका एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो 10 है और फाइनेंशियल अकाउंट में आपने
1000 रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज 10,000 लिखते वक्त अकाउंटेंट ने गलती से एक जीरो नहीं लगाया, उसने क्या रिकॉर्ड कर लिया, उसने रिकॉर्ड कर लिया 1000। और मैं मान के चलती हूँ, मान लो कॉस्ट अकाउंटेंट ने भी रिकॉर्ड कर लिया, या इसका दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो इसने रिकॉर्ड कर लिया इफ इट इज 7000। अब क्या है, एक्चुअल खर्च है 10,000, लेकिन रिकॉर्ड कितना हो गया, रिकॉर्ड हो गया 1000 और 7000 रिकॉर्ड हो गया। तो इसको लिखते हैं ना लेस एक्सपेंस चार्ज, इसको हम क्या लिखेंगे, लेस एक्सपेंस चार्ज। और इसको कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो लिखेगा अंडर रिकवर्ड। लेस और अंडर रिकवर्ड सेम ही चीज होता है। कॉस्ट रिकॉर्ड में हम यूज करते हैं अंडर रिकवर्ड, फाइनेंशियल अकाउंट में हम यूज करते हैं लेस चार्ज। एक्सेस चार्ज के लिए हम कॉस्ट रिकॉर्ड में यूज करते हैं ओवर रिकॉर्ड। ये आप टर्म्स ध्यान रखिएगा। In case of financial accounting, what we use. In case of cost accounting, what we use. अब मैं आप लोग को इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके बताऊंगी कैसे क्वेश्चन में करना है। नेक्स्ट, जो सिचुएशन रहेगा क्वेश्चन में, एज पर द सिचुएशन यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन कैसे रह सकता है। क्वेश्चन में हो सकता दिया हो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। 3 सिचुएशन हो सकता है। पहला सिचुएशन है आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, और आपके क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। इट कैन बी लॉस एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस कोई एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो आपका जो आंसर आना चाहिए, द आंसर शुड बी इन प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। क्वेश्चन में वो दिया हुआ है, आपका इंफॉर्मेशन दिया है कॉस्ट रिकॉर्ड का, तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंट में। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दिया है, तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट। दैट इज, और फाइनेंशियल दिया है तो आपका आंसर कॉस्ट में आएगा, कॉस्ट दिया है तो आपका आंसर किस में आएगा, आपका आंसर आएगा फाइनेंशियल में। अब थर्ड सिचुएशन क्या दिया रह सकता है कि क्वेश्चन में आपको दिया है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है, प्लस आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट भी दे दिया है, दोनों दे दिया है, कॉस्ट अकाउंट भी दे दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट भी दे दिया है। अब आप डिसाइड करोगे कि आपको स्टार्ट किससे करना है। आप दोनों में से कोई एक चूज करोगे, एनी वन, कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे मान लो इफ आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन, मैं स्टार्ट करती हूँ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड, आप शुरू करते हो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, तो दोनों सही होगा। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस होगा, इफ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन एज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा प्रॉफिट और लॉस एज पर एफए, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंट। और वही आप स्टार्ट किए होते प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तो आपका आंसर क्या आता, आपका आंसर आता प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन होगा। अब क्वेश्चन में करते क्या है आगे बताती हूँ मैं आप लोगों को। अभी डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करवाऊंगी, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कैसे करना है। आप लोग क्लास 11 में रिकंसिलिएशन ऑफ पासबुक एंड कैश बुक किए होंगे, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें एक टेबल बना रहता है, प्लस माइनस दिया रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको याद कर लेते हैं। बट आई विल नेवर सजेस्ट यू पीपल टू लर्न इट। इसमें भी दिया है प्लस माइनस याद करने के लिए, लेकिन आप लोग प्लस माइनस याद नहीं करोगे, आप लोग समझ के करोगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से, बैंक ये जो रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन होता है, यू विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व इट। 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आप 5 से 6 मिनट में फटाफट क्वेश्चन कर लोगे। कैसे करना है ये अब मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। आप लोगों को करना क्या है, और मान लो क्वेश्चन में दिया है फाइनेंशियल
तो आपको आंसर किस में चाहिए? आपको आंसर चाहिए इसका कॉस्ट अकाउंट का फर्स्ट स्टेप। आप ये चीज ध्यान रखोगे। अब आपको क्या करना है, आप अपने लिए लिखोगे एफए और सीए, ये रफ में लिखोगे। एफए इज रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट, सीए इज व्हाट? सीए इज एक्सप्रेसिंग व्हाट? सीए इज एक्सप्रेसिंग कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो सीए में ऐसे करोगे, एफए सीए क्वेश्चन में दिया है। एफए आपको कहां तक जाना है? आपको जाना है सीए में। अब आप एफए में किसी का भी नाम लिख लोगे, आप मेरा ही नाम लिख लो, दैट इज एफए में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? एफए में रिकॉर्डिंग कर रही है सुचिता मैम। हु इज रिकॉर्डिंग इन एफए? एफए में रिकॉर्डिंग कर रही है सुचिता मैम। और आप जिसमें आंसर चाहिए, आपको जिसमें आंसर चाहिए उसमें हमेशा अपना नाम लिखना। उसमें अपना नाम लिखना मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हो आई। मैं इस केस में मान लो अदिति का एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो अदिति रिकॉर्डिंग कर रही है, तो अदिति लिखेगी अदिति, करण लिखेगा करण, सपना लिखेगी सपना। मतलब आपको क्या लिखना है? आपको अपना नाम लिखना है। और मान लो ये सिचुएशन होता कि सीए से हम चल रहे हैं, हमें आंसर चाहिए एफए में। किसमें आंसर चाहिए? एफए में। तो जिससे चल रहे हैं उसमें किसी और का नाम लिख लेना, अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, अपने फादर मदर, आप मेरा नाम लिख दो, किसी का भी नाम लिख देना, सेकंड पर्सन का नाम लिखना है। और इसमें हमेशा अपना नाम लिखना है। मान लो वो भारतीय बना रही है तो भारतीय अपना नाम लिख देगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, जिसमें आंसर चाहिए उसमें अपना नाम लिखना है। अब करना क्या है आपको, मैं एक एग्जाम्पल दे करके पहले ये वाले केस से चल रही हूँ, दैट इज, और हम स्टार्ट कर रहे हैं एफए से, हमें जाना है सीए में। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, दिया है जैसे मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव overhead under recovered in cost account as ₹10,000। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम किस में यूज करते हैं? ओवरहेड हम टर्म यूज करते हैं कॉस्ट अकाउंट में। अब क्वेश्चन कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो अंडर रिकवर्ड है। अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या बताया था मैंने, कि वो एक्चुअल से कम रिकॉर्ड हुआ, मतलब कम रिकॉर्ड हुआ। अंडर रिकवर्ड मींस व्हाट? लेस। खर्च आपका कुछ और था, आपने कितने से कम रिकॉर्ड किया? आपने 10,000 रुपए से कम रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पे एक मैं हूं और एक आप है। यहाँ पे कह रहा है कि गलती किसने किया? गलती कॉस्ट अकाउंट में हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कॉस्ट अकाउंट में गलती हुआ है। तो कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? कॉस्ट रिकॉर्ड में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। आपने खर्च कम दिखाया, आपने खर्च कम दिखाया और मैंने नॉर्मल खर्च दिखाया। मैं किस में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ? मैं एफए में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपए कम हुआ होगा, क्योंकि आप कम खर्च दिखा रहे हो तो आपके पास 10,000 रुपए ज्यादा होगा। मैं एक एग्जाम्पल लेके इसमें चल रही हूँ। मान लो कि आपके पॉकेट में 80,000 रुपीज है, 80,000 रुपीज है, और एक्चुअल एक्सपेंस मान लो होता 12,000। तो 12,000 एक्चुअल एक्सपेंस होता, तो एफए में मैंने कितना खर्चा दिखाया होता? मेरे तरफ से गलती नहीं हुई, गलती किसके तरफ से हुई है? गलती आपके तरफ से हुई है। मैं 12,000 ही दिखा रही हूँ, लेकिन सीए में दैट इज कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट रिकॉर्ड में आप खर्च कितना दिखा रहे हो? आप दिखा रहे हो इट इज लेस अंडर रिकॉर्डेड एज 10,000। तो आप 10,000 रुपए कम दिखा रहे हो, मतलब आपने खर्च कितना दिखाया है? आपने खर्च दिखाया है 2,000। एक्चुअली खर्च कितना था? 12,000। आपने लेस कितने से दिखाया है? आपने लेस दिखाया है 10,000 रुपए से। मतलब आपने कितना खर्च दिखाया? आपने दिखाया है 2,000 रुपए। अब आप खर्च करो या मैं खर्च करूं, दोनों का एरो क्या होगा? दोनों का एरो नीचे होगा। नीचे मींस लेस। एक्सपेंस में क्या होता है? हमेशा लेस, क्योंकि आपके पास से कैश जाता है, आपके पास से पैसे जाते हैं। तो मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी? मेरे पास से कितने रुपए गया? मेरे पास से 12,000 रुपए गया। आपके पास से कितना गया? आपके पास से 2,000 रुपए गया। अब इसमें मैं दो तरीका बताऊंगी आपको, जो इजी लगेगा वैसे करना। अब क्या करना है, ये 12 है और ये क्या है? ये है 2। अब इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2,000
और 10,000, क्योंकि 10 प्लस 2 क्या हुआ 12 हुआ, और ये क्या है 2। अब रिकंसिलिएशन हम बनाते हैं डिफरेंसेस के कारण, और मेरे और आपके जो अमाउंट जो हम लिख रहे हैं उसमें कुछ डिफरेंस है, उसको लेकर के बनाते हैं। तो 2000, आपने भी 2000 लिखा, मैंने भी 2000 लिखा, तो इस दो को लेकर के तो कोई लड़ाई नहीं है, दो में हम कॉमन है। अब डिफरेंसेस क्या है, सुचिता मैम बोल रही है कि मेरे पॉकेट से 10,000 रुपए और निकला है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे पॉकेट से नहीं निकला है 10,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मेरे से 10,000 रुपए ज्यादा है। आपके पास क्या है, मेरे से, और मेरा पैसा कम है तो आपका डिफरेंस है, मतलब आपके पास ज्यादा होगा। मेरा एरो नीचे है, मतलब आपका एरो क्या होगा, ऊपर होगा। मैं दिखा रही हूँ कि मेरे पॉकेट से 12,000 रुपए गया है और आप कितना दिखा रहे हो 2,000, तो मतलब मेरे पॉकेट से कितना एक्स्ट्रा पैसा गया, मेरे पॉकेट से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा गया है। आप हमेशा याद रखना, आप जब भी प्लस माइनस करोगे तो आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है कि सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, आपको देखना आपके साथ क्या हुआ। तो आपके साथ क्या हुआ, आपके पॉकेट में 10,000 रुपए ज्यादा है। जब आपके पॉकेट में 10,000 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको प्लस करोगे। इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं मैं सिखाऊंगी, अभी आप लोग प्लस माइनस पहले समझो। तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। एक तो ये तरीका हुआ जैसे मैंने बोर्ड पे किया। दूसरा तरीका ऐसे समझो, एक मैं हूं और एक आप हो। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंट में जिसमें क्वेश्चन दिया है, और आप रिकॉर्ड कर रहे हो जिसमें आंसर चाहिए, दैट इज कॉस्ट अकाउंट में। मैंने बोला मेरे पॉकेट से 12,000 रुपए निकल गया, आप बोल रहे हो मैम मेरे पॉकेट में से 10,000 रुपए निकला। अब आप देखो मेरे और आप में किसके पास पैसा ज्यादा है। मेरे पॉकेट से 12,000 निकला, आपके पॉकेट से 10 निकला। 10 निकला मतलब किसके पॉकेट में ज्यादा पैसा है, पॉकेट में आपके पैसे ज्यादा है। कितना पैसा ज्यादा है, 2,000 रुपए से। क्योंकि आपके पॉकेट में 2,000 रुपए ज्यादा है तो आप क्या करोगे, प्लस 2,000 लिखोगे। दैट इज यू हैव टू ऑप्शंस, या तो एरो करके कर लो, और एरो हमेशा आपको अपना देखना है जिसमें आंसर लाना है। आपका एरो था 2,000, मेरा एरो था 12,000। अब इस 12,000 जो बड़ा होता है उसको छोटे के बराबर करके लिखते हैं। तो 12,000 को वी कैन राइट इट एज 2,000 एंड 10,000। 2,000 इज कॉमन, दैट इज 2,000 को लेकर के कोई लड़ाई नहीं है। जब 2,000 रुपए को लेकर के कोई लड़ाई नहीं है, इसका मतलब क्या, किसको लेके लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है 10,000 को लेकर के। तो 10,000 मेरा कम है तो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर आपको क्या करना है, आपको करना है कि सुचिता मैम ने 12,000 खर्च किया, मैंने 10 कम किया। मेरा सिचुएशन क्या है, मेरा सिचुएशन बेटर है, मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। सुचिता मैम के कंपैरिजन में कितना, 2,000 रुपए ज्यादा है। तो जैसे ही 2,000 ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस 2,000। अभी स्टेटमेंट में वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट, अभी आप कॉन्सेप्ट समझो। अब एक एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगी, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे मान लो दिया है सेकेंड एग्जाम्पल, फैक्ट्री एक्सपेंस of rupees 30,000 wrongly recorded in cost account और अंडर रिकॉर्डेड। अभी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ wrongly recorded, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा अंडर रिकॉर्डेड, ठीक है। अंडर रिकॉर्डेड या ओवर रिकॉर्डेड, wrongly recorded can be over or it can be under both। तो wrongly recorded or under recorded in cost account as suppose if it is 36,000, ठीक है। अब 36,000 या अभी मैं इसमें से आप लोगों का अंडर रिकॉर्डेड हटा रही हूं। पहले ये वाला एग्जांपल एज रुपीज 36,000। अब फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, फैक्ट्री एक्सपेंस है 36,000। 36,000 फैक्ट्री एक्सपेंस हुआ तो मैंने क्या रिकॉर्ड किया, मैंने 36,000 रिकॉर्ड किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्ट्री एक्सपेंसेस रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड। रॉन्गली रिकॉर्डेड कितना आपने रिकॉर्ड कर लिया, सॉरी
30 मैंने सही रिकॉर्ड किया 30, आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया, आपने 36,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब 36 में बड़ा कौन सा है 36, तो इसको मैं लिखूंगी 30 and 6। मैंने भी 30 लेस किया है, आपने भी 30 लेस किया है, लेकिन आपने 6 और लेस किया है, मैंने लेस नहीं किया है। तो 30 तक लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको लेकर के, प्रॉब्लम लेकर के 6 को है। आप हमेशा अपने एरो को देखोगे, आपका एरो क्या है, आपका एरो नीचे है, तो इसको क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, मैंने खर्चा दिखाया, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने खर्च दिखाया 30,000 मैंने खर्च दिखाया, और आपने कितना दिखाया, आपने 36,000 दिखाया। सुचिता मैम ने 30 दिखाया, आपने 36 दिखाया। अब क्योंकि खर्च में 30 दिखा रही हूँ, आप 36 दिखा रहे हो, किसके पास पैसा कम है, आपके पास पैसा कम होगा, क्योंकि आप 36,000 खर्च दिखा रहे हो, मैं 30 दिखा रही हूँ। तो कितने से आपके पास मेरे से पैसा कम होगा, आपके पास मेरे से 6,000 रुपीज लेस होगा। क्योंकि 6,000 रुपीज लेस होगा तो आप क्या करोगे, इसको माइनस करोगे। ठीक है, एनी डाउट, इफ देयर इज एनी डाउट आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज फिर मैं आगे बता रही हूँ। नेक्स्ट, इफ इट इज गिवन income tax of rupees 10,000 recorded only in financial account। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स फाइनेंशियल नेचर का होता है, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज जो अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वही रिकॉर्ड करेगा। कॉस्ट अकाउंट में देयर इज नो स्पेस फॉर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब क्या है इसमें हम चल रहे हैं एफए से, हमें आंसर किसमें चाहिए, हमें आंसर चाहिए सीए में। अब इनकम टैक्स आपने पे कर दिया और रिकॉर्डिंग कहाँ हो गया, उसका हो गया रिकॉर्डिंग एफए में। एफए में रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, एफए में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जैसे ही टैक्स पे किया तो मैंने क्या किया, मैंने एरो नीचे किया, कितने से, मैंने नीचे किया 10,000 से। क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड में हम इनकम टैक्स को रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंट में ना एरो ऊपर होगा ना एरो नीचे होगा। अब क्या सिचुएशन है, ये 10 था और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो बड़ा कौन सा है, जो 10 है, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या, इट इज 0। अब हम क्या करेंगे, वो एरो वाले सिस्टम को लेके चलते तो हम इसे लिख सकते थे 0 और इसको लिखते 10,000, और ये खुद में क्या है, ये है 0। तो अब 0 को लेकर के तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। हमारा डिस्प्यूट किसको लेकर के, हमारा डिस्प्यूट इसको लेके है। यहाँ पे सुचिता मैम ने 10,000 रुपए खर्च दिखाया, मैंने तो कुछ नहीं दिखाया। इसका मतलब यहाँ जब एरो नीचे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरो ऊपर 10,000 से। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका जैसे आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, दूसरा तरीका हुआ, सुचिता मैम ने 10,000 रुपए खर्च दिखा दिए और मैंने तो कुछ भी खर्च नहीं दिखाया। मैंने 10 दिखाया, आपने कुछ भी नहीं दिखाया। आपको हमेशा अपने आप से मतलब रखना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। जिसमें आंसर आना है उसको आप अपने आप को कंसिडर कर लोगे। मैंने 10,000 रुपए खर्च दिखाया, आपने 0 दिखाया। किसके पास पैसा ज्यादा है, मैंने 10 दे दिया, आपने कुछ नहीं दिया। तो आपका सिचुएशन बेटर है, आपके पास पैसा ज्यादा है। कितना पैसा ज्यादा है, मेरे कंपैरिजन में 10,000 ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे प्लस 10,000। ठीक है, और एग्जांपल लेकर के समझा रही हूँ। अभी मैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। अभी जो सिंपल है उसको आप समझ जाओ, तो यू विल हार्डली टेक 5 मिनट्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन व्हिच विल बी ऑफ 15 मार्क्स। अब मैं ले रही हूँ एक, जैसे मान लो वो दिया है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट। क्रेडिट मतलब क्या होता है, क्रेडिट मींस फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, मान लो एक बैंक इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 20,000 रुपीज का मिल रहा है। बैंक इंटरेस्ट इज अगेन व्हाट, इट इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर, तो वो कहाँ पे आएगा, बैंक इंटरेस्ट आएगा आपका, किसमें आएगा, बैंक इंटरेस्ट आएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंट में। अब फाइनेंशियल अकाउंट में जैसे ही मैंने देखा कि बैंक इंटरेस्ट आ गया तो मैंने क्या किया,
मैंने अपने फाइनेंशियल अकाउंट को बोला, अरे वाह पैसे आ गए, कितने आ गए, 20,000 आ गया। आपको बैंक इंटरेस्ट आया, तो ये तो आपको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करना ही नहीं है, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड में फाइनेंशियल नेचर की चीज को हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक इंटरेस्ट क्या है, बैंक इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, बैंक इंटरेस्ट नहीं आएगा तो क्या करेंगे, आपने कुछ नहीं किया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 और ये कितना है 20 और यहाँ पे तो 0 है, प्लस 0 लिखो, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब किस चीज को लेकर के डिफरेंस है, 0 को लेकर के तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ पे मैं प्लस हूं तो आप हमेशा डिफरेंट रहोगे, और मैं एरो ऊपर हूं तो आपका क्या होगा, एरो नीचे। मेरा प्लस 20 है तो आपका कितना होगा, एरो नीचे, मतलब इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है। इसको फिर मैं समझाती हूँ दूसरे तरीके से। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैंने 10,000 रुपए अप कर दिया कि मेरे को पैसे मिल गए 10,000 रुपए। आप बोल रहे हो कि मैम मैंने तो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का है, तो मेरे पास 10,000 रुपए और आपके पास 0 है। किसके पास पैसा है, पैसा मेरे पास है, प्लस है, और आपके पास क्या, आपके पास पैसा नहीं है। तो किसका सिचुएशन, किस, आपके पास मेरे से कितना कम है, तो आपके पास मेरे को 10 मिल गया, आपको नहीं मिला, तो आपके पास क्या है, मेरे से 10,000 रुपए कम है। 10,000 रुपए कम है, इसका मतलब आपको क्या करना है, माइनस 10,000। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट माइनस 10,000। ठीक है। अब आप लोगों को इसमें एक डेप्रिसिएशन का एग्जांपल देती हूँ। डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं, दोनों में रिकॉर्ड करते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसे वो दिया हुआ है, मान लो इफ इट इज गिवन depreciation recorded in financial account ₹10,000 ऐसे दिया हुआ है, और दिया हुआ है एक ये इंफॉर्मेशन दिया है, एक इंफॉर्मेशन दिया है, depreciation charged in cost account ₹15,000। मतलब फाइनेंशियल अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन कितना दिखाया है, 10,000, और कॉस्ट अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन कितना दिखाया है, हमने दिखाया है 15,000। अब क्या करेंगे देखते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, एरो नीचे गया तो कितना गया, इन केस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एरो कितना नीचे गया, फाइनेंशियल अकाउंट में एरो नीचे गया कितना, 10,000। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कम गया, दैट इज, और कॉस्ट अकाउंट में कितना दिया है, इट इज गिवन 15,000। दैट इज, मैं भी बोल रही हूँ कम है, आप भी बोल रहे हो कम है। मैं कितने से कम बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ 10,000 से कम है, आप बोल रहे हो कितने से कम है, 15,000 से कम है। अब देखते हैं कि हम दोनों किस लेवल तक कॉमन है और किस लेवल के बाद हम कॉमन नहीं है। दैट इज, ये 10 है, ये 15 है, 15 को हम लिख सकते हैं 10 और इसको लिख सकते हैं 5। तो कहां तक हम कॉमन है, कॉमन हम है 10-10 तक, मतलब इस 10 को लेके कोई लड़ाई नहीं है। इस चीज को लेके लड़ाई है, इसको लेकर के लड़ाई है। आपको हमेशा अपने आप से मतलब होना चाहिए, आप कितने से नीचे अभी भी दिख रहे हो, एरो नीचे मतलब माइनस, सो दिस विल बी -5,000, दिस विल बी व्हाट, -5,000। दूसरे तरीके से मैं समझाती हूँ। तो डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन मैंने कितना दिखा दिया, मैंने बोला 10,000 गया, कहाँ गया, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन गया। आपने क्या बोला, यस मैम मेरा भी गया डेप्रिसिएशन, लेकिन 15 गया। मैं 10 बता रही हूँ, आप 15 बता रहे हो, किसके पास से ज्यादा पैसा गया, आपके पास से, आपके अकाउंट से पैसा ज्यादा गया। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम बट वी शो इट एज एन एक्सपेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। तो मैं 10 बता रही हूँ, आप 15 बता रहे हो, तो मेरे कंपैरिजन में आप कितना कम हो, मेरे कंपैरिजन में आप 5,000 से और कम हो, मतलब आपके पास 5,000 रुपए और कम है। मैंने खर्च 10 दिखाया, आपने 15 दिखाया, 10 तो कॉमन हो गया, लेकिन जो 5 आपने ज्यादा दिखाया, मतलब आपका सिचुएशन मेरे से नीचे है, आप 5,000 रुपए कम चल रहे हो। 5,000 रुपए कम चल रहे हो, मतलब आपको क्या करना होगा, इट विल बी -5,000। एक और एग्जांपल ले रही हूं, इफ इट इज गिवन, और क्वेश्चन में कह रहा है
और क्वेश्चन में जैसे मान लो वो कह रहा है बैंक चार्ज ₹2000, कुछ भी नहीं कह रहा है, बस कह रहा है बैंक चार्ज ₹2000। बैंक जब आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो आपसे चार्ज करता है